ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੀਦੀ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਥੋੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਕਸਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਥ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਐਂਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਰੀਅਲ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਸੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੀਦੀ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਥੋੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੀਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਗਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੋ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਟਾਟਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਓ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪੇਨਫੁਲ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਏਜ 'ਚ ਦੀਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 45। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਛਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। 24 ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, 25 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਦੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪੇਨਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਦੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੜਵਾਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਈ। ਸੋ BVSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਰਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੀਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੀਟ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਦੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ MBBS 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੀਦੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 24 ਨੂੰ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਦੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਹ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਦੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਦੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਵਾਸੂ ਦੀ ਸੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜਵਾਸੂ ਆਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੜਵਾਸੂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਆਈ,
15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੇਮ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਦੀਦੀ ਹੋਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੇਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਵੰਬਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੁਗਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:15 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਗਈ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿਊ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦੀ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ BRS ਨਗਰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਗਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਭਾਗਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 8 ਕੇ 9 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਵਤ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲਵਾਇਆ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਗਵਤ ਓਪਨ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੇਮ ਡੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਜੋ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਇਧਰ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੋਕਰ ਸੈੱਟ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਿੰਨਾ, ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਗਵਤ ਖੁੱਲੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। WhatsApp ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆਊਟ ਆਫ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊ ਫੋਨ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈਫੋਨ 17 Pro ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦਾ।
दैट्स अ वंडरफुल सरप्राइज गुरु जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी, मैं तो कोई काम भी नहीं सी हो पा ਰਿਹਾ, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਊ ਫੋਨ ਦੇ ਲਈ, ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्या आपको पता है गुरुजी को खाने में क्या पसंद था और गुरुजी अपनी संगत को क्या कहते थे कि चाय में क्या डाल के पीना चाहिए? और गुरुजी अपनी संगत को जो भी सीख देते थे जब वो संगत करते थे, आज हम वो गुरुजी की ओल्ड संगत के सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे, शॉर्ट में शेयर करेंगे वो सारी इंफॉर्मेटिव बातें जो हम सब संगत को जरूर पता होनी चाहिए। गुरुजी संगत को कहते थे इस समय घर से निकला करो, तो गुरुजी का वो ब्लेस्ड टाइम जो संगत आंटी ने बताया हम आपके साथ आज के सत्संग में शेयर करेंगे, तो इसको अंत तक सुने और सुनने के बाद जरूरतमंद संगत के साथ इसको शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर जरूर लगाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की पुरानी संगत का ये सत्संग है जो गुरु जी संगत करते थे। तो वो बोलते थे कि आंटी जब भी चाय पीते हो, चाय बनाते हो, तो उसमें या तो मोटी इलायची या फिर छोटी इलायची ये डालकर ही आपको चाय बनानी चाहिए और इसको पीना चाहिए। दूसरी बात, वो कहते थे कि जब आप शाम को घर में पूजा करते हो तो पहला तो आप अगरबत्ती जरूर आपको जलानी चाहिए, क्योंकि इससे खुशबू हो जाती है। और साथ ही जब आप जोत जलाते हो तो जोत आपको हमेशा देसी घी की ही जलानी चाहिए। गुरुजी कहते थे कि पौने पे कभी आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसा पौना 1, पौना 2, पौने पे कभी आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब भी आपको जाना चाहिए तो पौने के अलावा जो टाइम होता है उस पे जाना चाहिए। और संगत आंटी बताते हैं कि जहाँ तक उन्होंने नोट किया है, गुरुजी अपनी संगत में जब बैठे होते थे और कोई पौने के आसपास अगर संगत जाती थी तो गुरुजी उनको मना करते थे। और जो गुरुजी का प्लेस टाइम था वो था 20। गुरुजी कहते थे पौने 1 नहीं, तू 1:20 पे जा। तो ये जो 1:20, ये जो 20 का टाइम है, ये गुरुजी का ब्लेस्ड टाइम हुआ करता था, जो संगत आंटी ने अपने सत्संग में बताया। और साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो गुरुजी अपनी संगत को कहते थे, वो कहते थे कि कभी भी सारे फैमिली मेंबर्स एक बार में घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। जैसे आपको कहीं जाना है और सब फैमिली मेंबर्स को जाना है तो आप घर से बाहर जब निकले 2-2 करके, 3-3 करके या 1-1 करके निकले। लेकिन संगत जी, आप सबको एक साथ घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए अगर आप कहीं जाते हैं तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो गुरुजी महाराज ने अपने वचन में कही हैं और हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। और साथ ही संगत जी, गुरुजी ने कहा कि काला धागा जो होता है वो पैरों में नहीं पहनना चाहिए। बहुत लोग स्टेटस सिंबल, फैशन बना लिया है, क्योंकि पैर में अगर हम काला धागा बांधते हैं तो गुरुजी कहते हैं पुट्ठे काम होंगे हैं। वो आपका जो है शनि आप अपने पैर में लेके घूमते हो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। और संगत जी बताते हैं कि गुरुजी को खाने में क्या पसंद था। उन्हें सबसे ज़्यादा ये 2 चीज़ें पसंद थी। आंटी बोलते हैं कि एक तो नमक मिर्च का पराठा और दूसरा मसाला काजू। तो संगत जी,
आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आपको सुन के अच्छा लगा होगा, इसको संगत के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, जो हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। गुरु जी का सबसे पहले बहुत बड़ा शुक्राना। उन्होंने एक बहुत बड़ा संकट काटा है और मुझे नहीं पता, बट बेटे से रिलेटेड है। बच्चों से के बारे में जब भी गुरु जी कोई भी बात कहते हैं तो मुझे सच में उसी वक्त शुक्राना करने के लिए भी बोलते हैं। इनफैक्ट किसी के लिए भी बोलते हैं शुक्राना तो उसी वक्त बोलते हैं, बट मैं कई बार नहीं कर पाती। गुरु जी क्षमा करना। जो भी कष्ट आपने काटा है बहुत बड़ा है, आपने बताया, उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि एक विशेष ब्लेसिंग देने आया हूँ। एक बात तो कहने वाली है, मेरे द्वारा दी गई हर चुनौती का सामना तो डटकर करती है। आज मैं तेरे परिवार को, तुझे धन निरोगी काया ब्लेस कर रहा हूँ। अब तुझे हाथ फैलाने के दिन गए। मैंने ठीक इस समय पर तेरे हाथों की लकीरों में वो महत्वपूर्ण चीज़ डाल दी है जिसके लिए तू पिछले 3 सालों से दर दर की ठोकरें खा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि मेरी सारी बाधाएं, सब चीज़ें जो भी कष्ट दे रही हैं वो अपनी झोली में डाल कर ले जाएंगे और इस दिन को इतना स्पेशल बना देंगे कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मेरे एक कदम बढ़ाने पे वो 100 कदम मेरे साथ चलेंगे। मैं जानता हूँ पूरे भक्ति भाव से इस संदेश को सुन और इस सत्संग को सुनने के बाद तुरंत एक शुक्राना कर। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपका संदेश मेरे सर आँखों पर। कोटि कोटि प्रणाम आपको, लख लख वारी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जो भी संकट था बहुत बड़ा, उसे आज काटा है और बहुत सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड फिर से बताई हैं। और पिछले 7 घंटे से मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। अगर आज सत्संग नहीं सुना तो मैं लौट जाऊँगा और साथ में ले जाऊँगा सारी ब्लेसिंग्स जो तेरे लिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी आज्ञा का सब तरीके से पालन करती हूँ। जो नहीं हो पाती हैं वो भी आपको पता है, जो हो पाती हैं वो भी आपको पता है। आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा मेरे सिर पर रहे। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ, आपका नित्य करती रहूँ। मुझसे कोई भूल से भी कोई भूल ना हो, और अगर भूल हो भी तो उसे आप ही ठीक करवाएं गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, हर दात के लिए, हर सौगात के लिए गुरु जी। गुरु जी, आपकी कृपा से ही सारे काम बन रहे हैं। आपने सारी बाधाएं हटा दी हैं। आप ही सब चीज़ों के लिए बेड़ा पार करेंगे। आपके सिवा और किसी के पास हम अपना विश्वास नहीं लेकर जा सकते और ना ही इस विश्वास को कहीं और समर्पित कर सकते हैं गुरु जी। गुरु जी, आपकी वजह से ही आज अच्छे से जी रहे हैं। हर दुख को आपने दूर किया है, हर परेशानी को आपने ख़त्म किया है। मेरा विश्वास सिर्फ़ और सिर्फ आप पर है गुरु जी। आपके कराए हुए हर चमत्कार के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। यूनिवर्स के संदेश, बहुत बहुत प्यारे मैसेजेस आपने दिए हैं गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की वजह से जो बच्चों की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हुई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने अभी अभी जो लास्ट मैसेज दिया उसके हिसाब से अभी शुक्राना करने के लिए बोला। जो भी बड़े कष्ट हैं, जिस तरीके से भी गुरुजी बिना बताए, किस तरीके से बिना एहसास दिलाए सब दूर करते हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हमारे पास कभी शब्द नहीं होते गुरुजी। जिस वक्त आप किसी भी मुसीबत से दूर करते हैं, किसी भी बड़े कष्ट को आप हरते हैं, सच में हमें पता भी नहीं होता गुरुजी। आप सब कुछ जानते हैं। आप ही पालनहार हैं, आप ही सृजनहार हैं, आप ही संहार करने वाले हैं। आपके सिवा कोई भी किसी भी तरीके से इन सब तंत्र मंत्रों को, इन कष्टों को हमसे दूर नहीं कर सकता। आप ही सब कुछ अच्छा करते हैं हमारे लिए। हमें हमारे भविष्य के हिसाब से जो ठीक है वही देते हैं गुरुजी। हमें कुछ भी नहीं समझ आती, हम जाने अनजाने में कुछ भी मांग लेते हैं गुरुजी। आपकी कृपा से जो आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है हमारे लिए, आप सिर्फ़ और सिर्फ वही देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी आप सबको भी इसी तरीके से ब्लेस करें जिस तरीके से मुझे ब्लेस किया है, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली और हेल्थ ब्लेसिंग्स इतनी सारी जो दी हैं गुरुजी, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत को भी इसी तरीके से आप ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं रूहानी आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि कल मुझे गुरु जी ने जो आदेश दिया था कि तू अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं उसको उसके कष्टों से मुक्ति दे दूँगा। तो मैंने गुरु जी के आदेश के अनुसार जो शुक्राना सत्संग शेयर किया था वो रूहानी आंटी जी ने सत्संग शेयर कर दिया। तो उसके लिए रूहानी आंटी जी का कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, अब गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि पुत्र तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, क्योंकि इन दिनों संगत जी, क्योंकि गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत हावी है, मारन क्रिया बहुत हावी है और तंत्र मंत्र इस समय तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी चल रहा है। तेरे बच्चे के ऊपर उसका असर है, तेरे पति के ऊपर भी उसका असर है और तेरे परिवार को बांध दिया गया है। गुरुजी, तो तू, तेरा एक ही काम है, तो तू मंत्र जाप करती रह, सिमरन करती रह और शुक्राना शेयर करती रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का तो हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, जो दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। अपनी भक्ति कराने का शुक्राना है, अपना नाम जपाने का शुक्राना है, इष्ट की साधना करवाने का शुक्राना है, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना है, सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाने का शुक्राना है, सत्संग में जो उपाय बताए जाते हैं वो करवाने का शुक्राना है, मंदिर भेजने का शुक्राना है, सत्संग में बुलाकर ब्लेस करने का शुक्राना है। तो गुरुजी, अपना नाम जपाने का शुक्राना है, मंत्र जाप कराने का शुक्राना है, मंत्र जाप सुनाने का शुक्राना है और परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना है, परिवार में शांति और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए शुक्राना है और हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आया था, पुत्र तेरे बच्चों को बहुत बड़ी कामयाबी कैरियर में मिलने वाली है, कल्याण कर दिता, शुक्राना कर दें। तेरे पति के परिवार में से ही किसी औरत रिश्तेदार ने तुम दोनों पर काला जादू करवाया है। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों की आपस में बने और ना ही तुम्हारा बच्चों से कोई सुख हो, लेकिन मैंने उसके तंत्र टोटके पर उल्टा वार कर दिया है। अब उसका किया उसी पर पलटेगा। तू घबरा मत, बस थोड़ा ध्यान रख, सतर्क रह और अंदर से मजबूत बनी रह, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखिए, ये तंत्र मंत्र के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन व्यक्ति हमारे से कितनी ईर्ष्या करता है और उसका ईर्ष्या का लेवल कितना है और वो किस हद तक हमारे लिए बुरा सोचता है। तो इसके लिए वो अपनी ईर्ष्या को निकालने के लिए वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है। वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है और चाहता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, डिप्रेशन में जाए, रोए, तड़पे। मतलब किस हद तक वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर
डालकर दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन गुरु जी की जब लाइफ में एंट्री हो जाती है तो संगत जी इससे बड़ा सौभाग्य की कोई बात जीवन में हो नहीं सकती। मृत्यु लोक में जब गुरु जी आपका हाथ पकड़ ले, आपको अपनी संगत बना ले, तो आपसे सौभाग्यशाली, आपसे भाग्यशाली व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि जब उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाती है, उनका मेहर भरा हाथ आपके सर पर रखा जाता है, तो आपकी जीवन में ऐश ही ऐश होती है, मौज ही मौज होती है। कोई व्यक्ति आपसे कितनी भी ईर्ष्या करे, कितनी भी घृणा करे, कितना भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपको बर्बाद करने की कोशिश करे, लेकिन यदि गुरु जी का हाथ आपके सर के ऊपर है, गुरु जी की कृपा आपके साथ है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु जी स्वयं आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको कष्टों से निकलवाते हैं, आपके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, आपसे मंत्र जाप करवाते हैं, आपसे उपाय करवाते हैं, आपसे अपनी भक्ति करवाते हैं, आपसे आपकी इष्ट की साधना भी गुरुजी ही कराते हैं। तो गुरुजी तो मतलब इस मृत्यु लोक में गुरुजी का मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपनी संगत बनाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, गुरु जी मुझे कहते हैं कि मंगलवार का ये सत्संग तेरे बेटे के नसीब को चमकाएगा। पुत्र तेरे लिए ही ये सत्संग भेजा है। गुरु जी खुद बुला रहे हैं तुझे बड़े मंदिर, सत्संग सुनकर शुक्राना कर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं और मैं भी गुरु जी के बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। तो संगत जी, जल्दी से जल्दी गुरु जी आप हाथ पकड़ के मुझे अपने बड़े मंदिर ले जाइए, अपना दर्शन कराइए, अपना लंगर प्रसाद खिलाइए, चाय प्रसाद पिलाइए और अपना जल प्रसाद पिलाइए। मैं तो आपके मंदिर आने के लिए तरस रही हूँ गुरु जी। तो मैंने अरदास लगा दी है आज इस सत्संग के माध्यम से। गुरु जी, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि आप मुझे जल्दी से जल्दी अपने बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस कीजिए और मेरे परिवार के ऊपर जो भी कोई कष्ट, विपदा, परेशानी है उसको काट दीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा तांत्रिक सुअर की हड्डी तेरे घर से खींचकर बाहर निकाल रहा हूँ, भूलकर भी सत्संग मिस ना कर। तेरे पीछे लगे भूत प्रेत मसानी सब जलाकर भस्म कर रहा हूँ। अपने गुरु का हाथ छुड़ाकर दूर ना जा, सत्संग सुन, आज तुझे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूत प्रेत मसानी सबको जलाकर भस्म करने का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे घर से तांत्रिक सामान निकालने का अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, आज अमावस्या का दिन है, तो आज गुरुजी ने मुझे शिव मंदिर भेजा। वहाँ पे मैंने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 7 केले और 7 पीले फूल और दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव का जल अभिषेक किया और उनसे अपने पितरों के मोक्ष की कामना की और 11 रुपये शिवलिंग पर अर्पित किए। तो उसके लिए गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझसे ये कार्य करवाया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना। 5 रोटियां मैंने गाय के लिए निकाली, जो कि गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है हर ट्यूसडे, सैटरडे, एकादशी और अमावस्या पर निकालने के लिए। तो वो भी मैंने आज गाय मातों को खिलाई पितरों के नाम से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पीपल के पेड़ पर गुरुजी ने मुझसे पताशे और गुड़ का भोग लगवाया, वो भी मैंने किया जाके। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति की तरफ से और अपनी तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और ये गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना